Let's make the mind map. Vedic culture. Okay, Vedic culture. And first of all, introduction, source, traits of Aryans, and then origin. We will change here a bit our strategy. All right. So before political setup, I will be teaching you economy of the Aryans. Okay, economy. And after economy, we will discuss polity. Then society, religion, and comparison with Indus Valley civilization. मेरी तरफ से अगला क्वेश्चन मेंस का, इधर प्रीलिम्स का. कंपैरिजन विद इंडस वैली, कंपैरिजन ऑफ वैदिक कल्चर एंड इंडस सिविलाइजेशन. एंड ये बिना सिर पैर के नहीं है. इन प्रीलिम्स, I guess 7 to 8 years back, UPSC already asked 2 or 3 questions. I believe 2 questions minimum UPSC पूछ चुका है प्रीलिम्स में. 3 statements were given and तीनों स्टेटमेंट में क्या किया कि उसने एक पॉइंट रखा आईवीसी का, एक रखा वैदिक का. आईवीसी वैदिक, आईवीसी वैदिक. समझ रहे हैं इस बात को कंपेयर करते हुए? अगर प्रीलिम्स में वो अपने आप को रोक नहीं पाया तो मेंस में तो कोई रोक ही नहीं सकता उसको. यस और नो? सो ये भी आपको पढ़ना, नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता. बताते हैं बट लिखवाते नहीं, डिक्टेट नहीं करते, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते. ऑलराइट, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऑलराइट, सो वी विल डू एट द एंड ऑफ द टॉपिक. हम करेंगे इसको. फाइन. ओके, एंड बन गया माइंड मैप. अब इसी में कीवर्ड्स जोड़ने हैं, खत्म. और क्या ही है टॉपिक में. सो हेडिंग इज इंट्रोडक्शन. चलो कुछ ओपनिंग लाइंस लिखो. Write some opening lines in introduction. Okay. Vedic culture was Vedic culture was a rural culture. Vedic culture was a rural culture. Okay. This culture developed in north and northwestern parts of India. This culture developed in north and northwestern parts of India. Makers of this culture were Aryans. Makers of this culture were Aryans. Aryans were a linguistic group
Aryans were linguistic group. Earlier it was believed, earlier it was believed that Aryans were people of one ethnic group. Earlier it was believed Aryans were group or were a kind of ethnic group. Ethnic group that means racial group or racial group कि एक जाति के लोग. But in later times this theory was rejected. Earlier it was believed Aryans were a racial group or ethnic group, but in later times this theory was rejected. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। Guys, ethnic group, racial group based on the physical appearance. समझ रहे हैं मेरी बात? Physical appearance, physical traits. ठीक है? And linguistic group, this means physical traits may be varied, may be different, but they were speaking the language of the one group, right? They were speaking the languages of the one group. एक ही समूह की भाषाएं बोल रहे थे. All right? In continuation, kindly add. Aryans spoke Indo-European. Aryans spoke Indo-European languages. Spoke Indo-European languages like Germanica, German, even Greek, Latin, ये सब यहीं से निकलेंगे. Okay, so German language, Greek, Latin, English, Sanskrit, these are considered language of a group. All right, and that's why we see similarity among in these languages. In languages mein, that's why we see the similarity. Done, guys? After this, Vedic age can be subdivided in two parts. Vedic age can be subdivided in two parts. Early Vedic age or Rig Vedic age. Early Vedic age or Rig Vedic age. And
Second part will be later Vedic age. 1000 to 600 BCE. Some sources claim 500 as well. Done. After this, how we recreate the history of Aryans? Recreate कैसे करते हैं इसको? Sources. Okay. Sources about Vedic age. Now you have the fundamental understanding. This was the rural culture. कैसा है? गांव में रहते हैं. And Indus Valley शहरों में. गांव तो थे उनके पास भी, बट उनका जो डेवलपमेंट रीच्ड टू द सिटी लेवल. यस और नो? So city life was also present in Vedic age. In Vedic culture, we don't see the city life. All right, here we see the rural life. Fine. ये डिफरेंस को इन्हीं को तो लास्ट में करना, और करना क्या है? ऑल राइट, कंपेरिजन में. आफ्टर दिस सोर्सेस. सो गाइज वी हैव टू काइंड्स ऑफ सोर्सेस. बता दो जरा, आप भी बता दो. लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल. दैट्स ग्रेट. Literary source and archaeological source. So under the literary source, we use Vedas. Okay, Vedas, Brahmanas. These are the books, literature है. Brahmanas, Aranyakas, Aranyaks. We call these books forest books as well. Okay. Then Upvedas. Then we have Upanishads, and before Upanishads, Vedangas, Upanishads. Okay. Done. In last, you can add epic, Ramayana, Mahabharata as well. Ramayana and Mahabharata as well. Epic. Done. In archaeology, number one, pottery culture. Number one, OCP, ochre colored pottery. Ochre colored. Ochre, that means slight reddish color. Slightly red. Then in later times we see PGW, painted graveware. All right, guys. These two pottery cultures are associated with the Vedic age, OCP and और भी हैं, but these two were prominent. Red ware भी था, BRW भी दिखता है, but these two were prominent. After pottery culture, tools, guys, tools na, copper tools, iron tools. Okay,
आफ्टर दिस बोगस कोई इसमें लिखना पड़ेगा बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, दिस वॉज फाउंड फ्रॉम एशिया माइनर, एशिया माइनर मॉडर्न एरियाज ऑफ तुर्की and dated back to 1400 BCE. Bogus, B-O-G-A-Z, okay, K-U-I. Bogus Kui inscription. Bogus Kui is a place, guys. This is a place in एशिया माइनर, तुर्की सीरिया के आसपास वाला बेल्ट रहता है. ओके, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन. डन. Please add some points in bogus कोई inscription. Shall I start? So listen, हम लोग कर क्या रहे हैं? After the intro, what we are doing? कि from where we collected the information about Aryans, yes or no? कि जानकारी मिल कहां से रही, पहले तो ये तो बताओ. Right? This is the kind of short version of the optional. वहां पर भी ऐसे शुरू करते हैं कि first of all we take a deeper discussion or deep discussions about the sources कि इंफॉर्मेशन निकली कहां से. और ऑप्शनल में तो क्वेश्चंस भी निकलते हैं. लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन, archaeology knows no Aryans. Archaeology knows no Aryans, only literature. कि लिटरेचर में तो खूब बात है आर्यों का, बट आर्कियोलॉजी में उतना डिस्कशन, उतना मतलब मालूम नहीं चलता कि ये कौन था, आर्यंस थे कौन था. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आर्कियोलॉजी में आर्यंस है ही नहीं, हैं, बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर लिमिटेड. इस टोन में इसका आंसर लिखना था उधर, मतलब ऑप्शनल वगैरह के अंदर में. ठीक है, चलिए आप यहां पर देखिए, तो बोगस कोई में लिखिए, दिस इंस्क्रिप्शन वाज अ काइंड ऑफ पीस ट्रीटी. दिस इंस्क्रिप्शन वाज अ काइंड ऑफ पीस ट्रीटी. दिस इंस्क्रिप्शन वाज अ काइंड ऑफ पीस ट्रीटी between two tribes, between two tribes, namely Hittis and Mitannis. See here, two tribes, Hittis and Mitannis. This was a peace treaty between two tribes, Hittis and Mitannis. Okay, and this peace treaty was done by the help of Vedic gods. अब इनके बीच झगड़ा था, झगड़ा किसने सुलझाया? वैदिक गॉड्स, हेल्प्ड बाय वैदिक गॉड्स. और ये कौन कौन से गॉड्स थे? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य. इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य. इंद्र, मित्र, वरुण. एंड इंस्क्रिप्शन कहां से मिला? तुर्की. उधर इनके नाम लिखे हुए हैं. एंड दीज आर द वैदिक गॉड्स. ऋग्वेद में इनका प्रॉपर मेंशन है. ऑलराइट, एंड इंद्रा वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड गॉड इन द ऋग्वेदा. इंद्रा. ओके, आफ्टर दिस आप नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नेक्स्ट लिखो.
mention of Aryans in Kassite inscriptions and Mitanni inscriptions. Kassite was another tribe. Mention of Aryans. See here, Kassite inscriptions. Kassites were in Iraq. Kassite inscriptions and Mitanni inscriptions. Mitanni तो लिखा था मैंने इधर, Mitannis. Okay, Mitanni inscriptions. Mitannis were in Syria. Technically, Mitannis were in Syria. Done, guys? कुछ पिक्चर बन रही दिमाग में कि लिटरेचर की बात तो चलो ठीक दिख रही है, देन आर्कियोलॉजी में भी काफी कुछ नजर आ रहा है. आफ्टर दिस चलो ठीक है, वी आर सर्चिंग आर्यंस ना. टेक्निकली हम जा किधर रहे हैं? ओरिजिन ऑफ आर्यंस. जा तो उधर ही रहे, एजेंडा तो वही है कि आर्य थे कौन. बट आप आर्यंस को ढूंढ रहे हो तो इट इज लाइक दिस, कोई खो गया है, आप ढूंढ रहे हो तो कुछ पता होगा ना आपको उसके बारे में. कैसे ढूंढोगे? कोई दोस्त खो गया, दिखाओगे ना फोटो. यस और नो? मेले में खो गया है, फोटो भी नहीं है तुम्हारे पास, तो शक्ल बताओगे, कपड़े बताओगे? यस और नो? So before we start our discussion about the origin of the Aryans, this is my duty to tell you traits of the Aryans. कि कुछ विशेषताएं तो पता हो तभी तो ढूंढोगे. पता कुछ है नहीं, ढूंढ रहे हो. क्या ढूंढ रहे हो? Yes or no? It will be like too much fun. ठीक है ना? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं सब समझा रहा हूं बढ़िया, और तुम सब खत्म मामला. राइट? ओके, सो बिफोर आई टेक यू फॉरवर्ड, आई हैव टू एजेंडास. दो एजेंडे हैं मेरे पास में. आई वॉन्ट टू टेल यू सम पॉइंट्स अबाउट द लिटरेचर. लिटरेचर के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको. उसके बाद ट्रेड्स. ठीक है? आई बिलीव टुडे यू गॉट द ARM, द मोस्ट अवेटेड ARM है. देना इसे जरा. इन योर ARM मैंने क्या करवाया था कि लिटरेचर के काफी सारे पॉइंट्स ना ऐड करवा दिए थे. है या नहीं है? है. ऑल राइट. अब ये फैक्ट तो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी हमको, बट आई विल गिव यू द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं. बिकॉज with regard to the literature, many points are, many tables are written here as well. और वो रटने वाला वर्क है कि सुबह 4 बजे का प्रोग्राम बनाओ और मंडल्स याद करो. समझ गए इस बात को? बट इन मेंस आंसर राइटिंग दिस इज नॉट लाइक दिस. ऐसे नहीं यूज करते हम लोग, हमारा तरीका तो डिफरेंट होता है. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन अबाउट द लिटरेचर. एक सब हेडिंग करिए, वैदिक लिटरेचर. टेक इट. सब हेडिंग इज वैदिक लिटरेचर. अब देखो, why your class notes are important. Here I will dictate only those points which are not written in the PPT and in ARM. दोनों में नहीं है. Repeating the information is a very bad thing. Very bad thing. Yes or no? कि उधर भी लिखा, इधर भी लिखवा दिया. Wasting of time. So वो करो जो उधर नहीं है. Fine. तो फैक्ट तो खूब लिखे हुए दिखा देता हूं. अच्छा, मैं आपकी मन की शांति के लिए, मन को शांत रहना बहुत जरूरी. किधर गया? ये तो ओरिजिन की बात आ गई. ओरिजिन यस. वेदा, ब्रह्मणाज, उपनिषदाज, आरण्यकाज एंड टेबल है पूरा आपके लिए. अच्छा लग रहा है देखकर? अच्छा लग रहा है? गुड. इंफॉर्मेशन अबाउट द ऋग्वेदा.
all the important points about the Rig Veda, Yajurveda, Samveda, Atharvaveda, Vedanga, 6 Vedangas. All right, 6 Vedangas with definition, right? एंड जो यहां नहीं है वो ARM में है, और जो दोनों में नहीं है वो अभी लिखवा रहा हूं. एंड दैट्स व्हाई मैंने लिख के दिया था उधर कि क्लास नोट्स, PPTs, NCERTs, स्टैंडर्ड बुक, 4-5 सोर्स तो यही हो जाता है तुम्हारा. अब इसके बाद कुछ बचा तुम्हारे करने को, मतलब इसके बाद तो जबरदस्ती है, फिर तो तुम कुछ भी करते रहो. ऑलराइट, इतना अच्छे से कर लेना. बिलीव मी, मेरी बात मानो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जितना पढ़ा के जाऊंगा ना तुमको इन एंशिएंट, मिडिवल, कल्चर, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, PI, समझ रहे हो, जितना मैं पढ़ा दूंगा अगर मैं दिख गया क्लास में तो उतना ढंग से कर लेना. ऑलराइट, और वो सोर्सेज जो बताएं पढ़ने के लिए, समझ गए. उसके बाद पेपर उठा के देख लेना, किसी भी साल का आने वाले उठा कर. इफ पेपर विल बी स्टैंडर्ड पेपर, यू विल बी द विनर इन माई सब्जेक्ट. समझ गए. बट ये 2 वे है, मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा. मैंने करवाया, तुमने पढ़ा ही नहीं. यू वर लाइक दिस, सुनहरे पन्ने हैं सुजीत सर के लिखवाए हुए, छोड़ो बाद में करेंगे बचा के. तो बचा के तो किसी काम का रहेगा नहीं, राइट ना. ओके, सो गाइज, हेडिंग इज, व्हाट इज द हेडिंग गाइज? वैदिक लिटरेचर, राइट, वैदिक लिटरेचर. नंबर 1, वेदास. ओके, वेदास. वेदा मीन्स टू नो. मीनिंग ऑफ द वर्ड वेदा इज, आप लिख सकते हैं साथ में, टू नो, जानना. ओके, टू नो. विद से निकला है, विद रूट है इसका, विद इज द रूट वर्ड है विद. संस्कृत में विद मीन्स टू नो. देन वेदास वर कंपोज्ड. वेदास वर composed. When we use the word composition, so composition can be of 2 types. It may be oral composition or written. So Vedas were orally composed. First of all, Vedas were orally composed, and after this Vedas were written. And when we see the writing of Vedas on palm leaves or bark of birch tree. And writing was not by printing press, it was manuscript, handwritten. So first of all, Vedas were orally composed. Okay, note it down. First of all, Vedas were orally composed. Done. Now think. अब सोचो, क्या सोचे? सोचना ये है, how the knowledge was getting transferred from one generation to other, right? So definitely by hearing, yes or no? Hearing from the guru, from the teacher in the Gurukul, mugging up the information, and again transferring this knowledge to next generation. And as the oral tradition, knowledge was transferred by it is done ना, तो ये तो लिखा ही हुआ है, orally composed. And as Vedas were orally composed, that's why Vedas are also known as Shruti. Shruti means heard, suna gaya. So another name of Veda is what? Shruti. So why Vedas are known as Shruti? Because the, आप लिख लेंगे इसको, Shruti, Vedas are also known as Shruti
because the knowledge was transferred through oral tradition. Because in early times knowledge was transferred through oral tradition. Because in early times knowledge was transferred through oral tradition. तो सुनाया, याद किया और नॉलेज ट्रांसफर होगा बाय दिस वे. Transferred through oral tradition. Okay, transferred through oral tradition. Done, guys? Great. Now please focus here. These are the fundamental things about the Vedas. All right. Now, Rig Veda was composed in early Vedic period. Rig Veda was composed in early Vedic period. Rig Veda was composed in early Vedic period. Listen, guys. From 1500 BCE to 1000 BCE, only one Veda was written. Which Veda? Rig Veda. Sam Veda, which is the smallest Veda. सबसे छोटा वेद यही है, साम वेद. फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं इसको, कल्चर में भी आता है, समन रागा. ऑल राइट. एंड आफ्टर दिस यजुर्वेदा, अथर्व वेदा. अथर्ववेद को जब पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि आर्यंस वर मिंगलिंग विद द नॉन आर्यंस. जो नॉन आर्यंस हैं, आर्यंस का उनसे भी बढ़िया बनने लगा था. कि अब जो नॉन आर्यन बिलीव्स स्टार्टेड क्रीपिंग इन द आर्यन कल्चर. जो नॉन आर्यंस बिलीफ हैं वो आर्यन कल्चर में एंटर होना शुरू हो चुके थे. लाइक फैलस वर्शिप, लिंग पूजा पढ़ाया था ना कल. Phallus worship. Phallus worship, originally this is not associated with the Aryans. In Rig Veda there is no mention of phallus worship. कोई mention है ही नहीं ऋग वेद में. In Rig Veda some groups are present. कुछ ग्रुप्स हैं जिनको आर्यंस कहते हैं, नॉन आर्यंस है. ये आर्यन नहीं है. एंड दे वर्शिप फैलस. ये फैलस की पूजा करते हैं. दे वर्शिप लिंगम. बट आज तो सब कर रहे हैं. All right, this is what? This is the non-Aryan belief. Non-Aryan belief है ये, जो कि आर्यों ने एक्सेप्ट किया. Aryans were so good. बहुत बेहतरीन है. क्यों पता बेहतरीन क्यों है? They soon realized. soon का मतलब ऐसा soon भी नहीं था, 500-600 साल में उनको समझ में आ गया. All right, कि nothing lies in the struggle. लड़ने में, फाइटिंग में कुछ रखा नहीं है. All right, Aryans started believing in this thing. There are many ways to know the truth. सच को जानने के कई रास्ते हैं. And from here comes the thought, ekam sat vipraha bahudha vadanti. And that's why Indian culture survived through the ages. 5000 years से ज्यादा सर्वाइव कर गए ना हम लोग, ऐसा नो. कल्चर्स आए गए, खत्म हो गए. इजिप्शियंस नामो निशान नहीं है उनका. ग्रीक्स, कौन जान रहा है ग्रीक्स को आज की डेट में? रोमन्स, कोई जान रहा है उनको? चाइनीज, नो रिलीजन. रिलीजन ही खत्म हो गया वहां से तो. राइट. कम टू इंडिया, हुआ बहुत कुछ हमारे साथ में, बट वी आर स्टिल स्टैंडिंग टॉल. आज भी खड़े हैं. यस और नो? राइट. इसलिए नहीं खड़े कि लड़े हैं सबसे. लड़े हैं डिफेंस में. भगाया है कि अगर तुम हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा. हाँ, हम भी तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे. तो इट इज लाइक दिस कि दोनों लोग मिल जाते हैं, कुछ नया बन जाएंगे. तो आर्यंस बिलीव्ड इन दिस आइडिया कि तुम्हारा कल्चर में जो अच्छे पॉइंट्स होंगे, आई वेलकम. तो मेरे वाले का भी कुछ वेलकम तुम भी कर लो, तो दोनों मिलके बढ़िया कर लेंगे. ऑल राइट. एंड दिस इज हाउ वी सर्वाइव्ड. कैथोलिसिटी,
रिजिड कभी नहीं रहे हम लोग, कभी रिजिड नहीं रहे. ऑलवेज वेलकम्ड एवरीवन, एवरी न्यू आइडिया वाज वेलकम्ड ऑन दिस लैंड. आप तो प्रयागराज में बैठे हम लोग, तो द ग्रेट प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, राइट. हमने बौद्धों से झगड़ा किया क्या? यस और नो? झगड़ा किया हमने, तलवारें निकाल ली? या बुद्ध अगर बनारस दिख गए इधर महावीर स्वामी जी, राइट? नो, वी वेलकम्ड, प्लीज कम एंड सिट, लेट्स टॉक, बात करते हैं, लेट्स डिबेट, डिबेट करते हैं, ऑल राइट. एंड द वन हु विल लूज दिस डिबेट, जो हार जाएगा, विल एक्सेप्ट योर आइडियाज, वो आपका फॉलोवर बन जाएगा. व्हाट अ गुड वे ना, क्या शानदार तरीका है. यू विल सी इन यूरोप, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ब्लड बाथ विल हैपन, खून की नदियां बह जाएंगी. प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स बोथ आर द क्रिश्चियन, दोनों क्रिश्चियंस हैं. समझ रहे हैं? नदियां बह जाएंगी खून की, भयानक. वो भी प्रोटेस्टेंट भाग जाएंगे अमेरिका, प्रोटेस्टेंट ब्रेक हो जाएंगे, कैथोलिक्स ब्रेक हो जाएंगे. समझ रहे हैं आप? आप देखो, ये सब हमारे यहां भी हुआ है. डिवीजन हैपेंड, बट ब्लड बाथ डिड नॉट हैपन. हाँ, वो कुछ एक राजा तो सबके यहाँ होते हैं खराब, हमारे यहाँ भी थे कुछ, शशांक लाइक, बंगाल वाला. ऑलराइट, मिलेगा मिलेगा रास्ते में. ऑलराइट, तो ये तो फिर कहीं भी होता है ना, वो तो हमारे यहाँ भी कुछ कुछ है. फाइन. सो नाउ लेट मी टेक यू फॉरवर्ड. वेदास, ओके. एंड after this, guys, in every Veda, we three certain things like core subject, and the chief priest. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस. इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है. तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका. साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स. सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें. अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू. And aspirants, listen to me very carefully. This literature is the part of art and culture. So if you are thinking sir is taking so much time in literature, so I have the broader goal to achieve. All right, in my brain the broader picture is going on. कौन सा पिक्चर चल रहा है? Literature is the part of art and culture, and many questions were asked from literature. Many questions were asked from literature in art and culture. All right, and वहां पर लिटरेचर को पढ़ाना सारा एक साथ, इट इज लाइक कि मतलब आप ठीक से डील नहीं कर रहे सब्जेक्ट को. फिर समझ रहे हैं इस बात को? नाउ टॉपिक इज गोइंग ऑन, यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिलीवेंसी, यस और नो? जो पढ़ा रहा हूं आप कनेक्ट कर रहे होंगे कि अच्छा वैदिक तो पढ़ना है, यस और नो? द प्रॉपर कनेक्टिविटी वो यहां से आती है. एंड मेनी अ टाइम्स आई सी पीपल टीचिंग द लिटरेचर प्योरली इन आर्ट एंड कल्चर, कुछ समझ में नहीं आता है. एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑलवेज, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करके चलता हूं मैनेजमेंट को कि एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर ये क्लासेस एक साथ लगाना. द क्लाइमैक्स विल कम इन द आर्ट एंड कल्चर. वहां पर होता ना असली चीज, एकदम सुंदरता, ब्यूटी, वो वहां दिखती है. फिर अरे बन गए क्वेश्चंस मेंस के. इस बार तो प्रीलिम्स में खैर 2 ही क्वेश्चन दिखे, 1 या 2 क्वेश्चन दिखा कल्चर से. ऑलराइट, बट मेंस में तो हर साल आता ही आता है. वी नो वेरी वेल 25 और 30 मार्क्स तो कल्चर से कहीं नहीं गया. राइट, ओके. नाउ आफ्टर दिस
So Veda, subject and chief priest. Fine. Starting with the ऋग वेदा, स्टार्टिंग विद द ऋग वेदा. सो जब मैं क्लासेस लूंगा कल्चर का, सो वहां पर फिर ये सब नहीं होगा डिस्कशन, वहां पर क्या होगा, कंपाइलेशन होगा. क्या होगा, कंपाइलेशन, कि सब डेटा कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे दे दिया कि टॉपिक हमारा पहले ही कवर हो चुका है. राइट, बार बार की मेहनत नहीं है. ऋग वेदा, सब्जेक्ट वाज प्रेयर, एंड द चीफ प्रीस्ट ऑफ ऋग वेदा वॉज नोन एज होत्र. क्या कहते थे इसको, होत्र. अब ये होत्र कोई भी हो सकता है, लाइक नाउ आई एम द चीफ प्रीस्ट ऑफ ऋग वेदा. सो एक तो मेरा नाम होगा, एंड आई एम होत्र एज वेल. व्हाई? बिकॉज आई एम द एक्सपर्ट ऑफ ऋग वेदा. ऑल राइट, आफ्टर माई डेथ समवन एल्स विल कम, यस और नो, कोई और आ जाएगा. या एक ही टाइम पर कई सारे एक्सपर्ट हो सकते हैं. इफ यू आर ऑल्सो एक्सपर्ट इन ऋग्वेदा, आपका नाम है और यू आर होत्र, होत्र भी हैं आप, लाइक आप हैं, आप होत्र हो गए, ऋग्वेदा में एक्सपर्ट हैं. तो समझ गए इस बात को. सो होत्र इज अ टाइटल, इज अ काइंड ऑफ टाइटल, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट. ऑल राइट, तो वही समझो. आफ्टर दिस सामवेदा, सामवेदा. So basically we see here what? Music. And Sam Veda is the smallest Veda. Is the smallest Veda, okay? And the chief priest was Udgatra, okay? Then Yajurveda. In Yajurveda we see rituals, and chief priest was Atharvyu. Then Atharva Veda. Atharva Veda, okay? And here we see black magic influence of non-Aryan, presence of non-Aryan beliefs, and chief priest was Brahma. Chief priest was Brahma. Okay. Some fundamental information about the Vedas. Okay. Now, I have some more points about the Rig Veda. ऋग वेद की तो बात करनी पड़ेगी भाई, पहला है ना. All right. So under the Vedic literature, subheading is Veda. Under the Veda, again subheading Rig Veda. Okay. Rig Veda. Shall I begin? Rig Veda is divided in 10 mandals or books. Rig Veda is divided in 10 mandals or books. Done? Just a while. Rig Veda, okay. How many mandals? 10 mandals, or known as books, okay. ऐसे भी कहते हैं, books के नाम से बोला. After this,
Himans in Rig Veda, Himans means सूक्त. श्लोक अलग होता है. श्लोका इज द पार्ट ऑफ हिमंस. सूक्त मतलब पूरा लाइन हो गया, स्टेटमेंट्स हो गए, उसके अंदर में क्या होंगे? श्लोक होंगे. सो हिमंस ऋग वेदा इज रिटन इन हिमंस, और इन ऋग वेदा वी सी हिमंस. हिमंस मीन्स सूक्त. एंड सूक्त का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ सूक्त इज वेल सेड और प्रॉपरली सेड. ठीक से कहा गया, बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया. ठीक है, सूक्त, वेल सेड, प्रॉपरली सेड. डन. सो इन ऋग वेदा व्हाट वी सी? हिमंस. फाइन. नियर अबाउट 1028 के आसपास हिमंस है, 10,000 के आसपास श्लोकास है. वो सब रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आफ्टर दिस, these hymns were composed by male and female sages. These hymns are composed by male and female sages. मेल फीमेल दोनों ने लिखा है. मेल एंड फीमेल sages. Done. After this, Vishwamitra and Vasisht, please add the names. Vishwamitra and Vasisht were two popular male sages. Vishwamitra and Vasisht were two popular male sages. Okay. Popular male sages. Sages. See. And female sages, Apala, Lopamudra, Vishwara. Apala, Lopamudra, Vishwara. These were popular female sages. Popular female sages. Done, guys? After this, next point. Second to seventh mandal are known as वंश मंडल और डायनेस्टी मंडल. ये यहां पर लिखा है, वंश मंडल और डायनेस्टी मंडल. Why? Because here what we see कि almost every मंडल is associated with any sage. किसी ऋषि ने लिखा है उसको. Like second by Gratsmad, Vishwamitra, Vamadeva, Atri, Bharadwaj, Vasistha, all are sages. सारे ऋषि हैं. All are sages. All right. And after this, first and 10th mandal are the latest edition. सबसे नए मंडल जो हैं फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड मंडल आर 10th ही है. फर्स्ट एंड 10th मंडल आर लेटेस्ट एडिशन. All right. Now, in the process of information consolidation, I will tell you some more points. Guys, in third mandal, we see very popular Gayatri mantra. In which mandal?
थर्ड मंडल गायत्री मंत्र. ओके. Fourth mandal, here we see the information about agriculture activities. Although agriculture कुछ इतना खास थी नहीं, बट फिर भी होता है ना टूल्स वगैरह कुछ नाम लिखे हुए हैं. फोर्थ में देखते हैं. सेवेंथ मंडल, द वेरी पॉपुलर बैटल ऑफ 10 किंग्स. सारी बातें होंगी आगे, अभी तो बस देख लो, आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, एक ही जगह लिखवा दिया. द वेरी पॉपुलर बैटल ऑफ 10 किंग्स. अरे 10 नहीं लिखा, बैटल ऑफ 10 किंग्स. डन गाइज. 7 हो गया. नाइन्थ मंडल अलग से लिखो. नाइन्थ मंडल, मेंशन ऑफ सोम गॉड और डेडिकेटेड टू गॉड सोम. नाइन्थ मंडल, सोम गॉड. सोम वॉज गॉड ऑफ हर्ब्स. इन्हें वनस्पतियों का देवता मानते थे. गॉड ऑफ हर्ब्स, सोम. सोमा वॉज द गॉड ऑफ हर्ब्स. एंड ये बनाते थे एक ड्रिंक which was known as Som Ras. And it is written in the Rig Veda, after drinking the Som Rasa, Aryans used to feel highly energetic. एकदम होता ना, एकदम आज का जैसे वो रेड बुल, कुछ ऐसे ही हो सकता है. ऑल राइट. या एंड ये जो सोम रस होता था वो आर्यंस को बूढ़ा नहीं होने देता था, हमेशा यंग रखता था. तो ये सब खासियतें हैं सोम रस की, बताया गया ऋग्वेद में, मैं कुछ नहीं बता रहा, मेरा कोई एडिशन नहीं है. All right, so all these things are mentioned about Somrasa. After this, 10th mandal guys, 10th mandal, 10th mandal, Nadi Sukta and Purush Sukta are part of 10th mandal. Nadi Sukta, information about rivers, okay. Nadi Sukta and Purush Sukta. पुरुष अंडरलाइन कर लो दोनों को. नदी सूक्त एंड पुरुष सूक्त are present in the 10th mandal. All right, 10th mandal. Now guys, this Purush Sukta, this is very important. There is a very popular shloka in the Purush Sukta. Brahmano mukhamasit bahu rajanyah kratah उदरभ्यो वैश्य आसीत एंड पादभ्यो शूद्रो अजायत. क्या मतलब हुआ इस श्लोका का? द मीनिंग ऑफ द श्लोका इज कि बर्थ ऑफ द ब्राह्मणा फ्रॉम द माउथ ऑफ द विराट पुरुष. ब्राह्मण्यो मुखम आसीत, ब्राह्मणों का जन्म मुख से हुआ. श्लोक है ये, इसका मीनिंग है इन इंग्लिश. एंड बाहु राजन्य कृतः, फ्रॉम द आर्म्स द बर्थ ऑफ द राजा क्षत्रिया. एंड जो उदर है, बेली पार्ट, स्टमक पार्ट और थाइस का पार्ट, फ्रॉम देयर द बर्थ ऑफ द वैश्य. एंड पादभ्यो क्या बोला था मैंने, शूद्र अजायता, शूद्रो अजायता. एंड पैरों से, फ्रॉम द लेग्स द बर्थ ऑफ द शूद्रास. फर्स्ट टाइम वी सी द मेंशन ऑफ फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम. पहली बार दिखा किधर? अच्छा एक बात बताओ, सबसे लास्ट में कौन से मंडल जोड़े गए थे ऋग्वेद में? ईमानदारी से बताना. फर्स्ट एंड. तो आप एक बात सोचो कि ये ओरिजिनल चीज रही होगी कि ये बाद में एडेड है? एडेड है. बाद में शायद जरूरत पड़ गया होगा इनको कि यार कुछ चाहिए हमको, तो बाद में छोड़ दो. अब आप सोचोगे सर इतनी राज की बात जो बाद में लिखा था, मालूम कैसे चला? आंसर इज वेरी सिंपल. इन द वेरी फर्स्ट क्लास इवन आई आंसर्ड राइटिंग. लैंग्वेज से मालूम चल जाता है. ऑल राइट, कि दिस वाज बिकॉज ओल्ड संस्कृत इज वेरी डिफरेंट, राइट?
लैंग्वेजेस ऑल्सो इवॉल्व, पता है ना आपको, भाषाओं का विकास भी तो होता है। आज के 100 साल पहले की हिंदी आप सुनोगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। 100 ईयर्स पहले की हिंदी, मतलब भर भर के उर्दू वर्ड्स, पर्शियन वर्ड्स भर के मिलेंगे आपको। देन स्टार्टेड द संस्कृताइजेशन ऑफ द हिंदी, कि हिंदी में संस्कृत डाल दो, और फ्रॉम हियर वी सी द डाउनफॉल ऑफ हिंदी, ये चीज देखते हैं, डाउनफॉल शुरू होता है हिंदी का। एंड सदर्न स्टेट्स विरोध करना शुरू कर देते हैं किसका, हिंदी का, कि हमें नहीं चाहिए हिंदी, बिकॉज नदर्न स्टेट्स वर वांटिंग संस्कृताइजेशन ऑफ हिंदी। बट जबकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज, देखो भाषा का मतलब जानते हो क्या होता है, कि आप नए नए वर्ड्स को ऐड करो, ये होती लैंग्वेज। ऑक्सफोर्ड में देखो ना, ये लोग करते हैं, ऐसे ही जोड़ते रहते हैं वर्ड्स, हम लोग हटाते हैं, हटाओ फिर हमारी अच्छी बनेगी। क्या अच्छी बनेगी, कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, कि आप तो भेदभाव कर रहे हो। लैंग्वेज का मतलब है कि वेलकम द न्यू वर्ड्स। फाइन, ओके, नाउ डन गाइज, दिस इज अबाउट द वैदिक, अंडर द वैदिक लिटरेचर अबाउट द वेदास। वेदों की बात हो गई। आफ्टर द वेदा क्या लिखवाया था, चेक करो जरा, बताओ। ब्राह्मणा और आरण्यक्स क्या लिखवाया था, बताओ, आप बताओ। ब्राह्मणास लिखवाया था, सब हेडिंग करो। अंडर द वैदिक लिटरेचर आफ्टर कंप्लीटिंग द वेदास प्लीज ऐड अबाउट द ब्राह्मणास। ओके, लेट्स गियर अप, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। लिखिए अबाउट ब्राह्मणास, कर लिया हेडिंग, सब हेडिंग है ब्राह्मणास। they explain hymns of the Vedas, they explain the hymns of the Vedas, hymns of the Vedas, okay, hymns of the Vedas. These are like appendices of Vedas. These are like appendices of Vedas. These are like appendices of Vedas. Okay. बाकी सब लिटरेचर वेदों से ही निकल गया है, समझ गए इस बात को, सब उन्हीं से जुड़ा हुआ है। ओके, आफ्टर दिस each Veda has several brahmanas. Each Veda has several brahmanas. Each Veda has several brahmanas. Let me help you out. See guys, Veda, Rig Veda, right na? Aitareya Brahmin and Kaushitaki Brahmin. Both books are associated with the Rig Veda. Done na? Then you can see Aitareya Upanishada and Kaushitaki Upanishada. Again, Upanishadas related to the Rig Veda. Aranyak, Aitareya, Kaushitaki. There is a debate with respect to Ayurveda. Some historians say Ayurveda is the Upaveda of the Rig Veda. Some say no, this is not the Upaveda of Rig Veda, but the Upaveda of Atharvaveda. अब जब डिबेट हो गई तो यूपीएससी पक्का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा। कंजर्वेटिव अप्रोच उसका रहता है कि भैया डिबेट है जहां पर, वहां से दूर रहो। फाइन, अदरवाइज पता लगा इसको बढ़ाना पड़ गया। सो बता दिया मैंने कि आयुर्वेदा इज ऑल्सो देयर, but there is a debate on Ayurveda. Fine. Okay. Then you can see Yajurveda, Brahmanas, Taittiriya, Shatapath. These are the Upanishads of the Yajurveda, Aranyakas, and the Dhanurveda is the Upaveda. Okay. अब एग्जाम में तुमसे इस पर तो कोई डिबेट है नहीं, धनुर्वेदा, गंधर्ववेदा एंड, इस पर तो कोई डिबेट है नहीं, नो डिबेट। पूछ सकता है एग्जाम में, और पूछे हैं क्वेश्चंस, द उपवेदा ऑफ द वेदास। समझ रहे हैं इस बात को, वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं, क्योंकि ये सिंगल है ना, सारे आसान रहते हैं हमेशा। तो आप बाकी याद कर पाओ ना कर पाओ कोई टेंशन नहीं है, समझ गए ना, बट डू दिस, इसको जरूर कर लेना, उपवेदास। डन ना गाइज? सम उपनिषदास आर वेरी पॉपुलर, लाइक मुंडक उपनिषद इज वेरी पॉपुलर, सत्यमेव जयते, फॉर दैट रीजन
बृहदारण्यक उपनिषद इज वेरी पॉपुलर. Why? Gargi Yagyavल्क डिस्कशन. ऑल राइट. देन देर इज कट. कट भी कहीं पर होना चाहिए, दिख नहीं रहा लिस्ट में, चलो मैं अलग से लिखवा लूंगा. कठ उपनिषद इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ यम एंड नचिकेता डायलॉग. राइट. सो ये सारे क्रांतिकारी लोग तुमसे कल्चर में मिलते हैं, फिलोसफी में तुमसे मुलाकात करते हैं, और अभी आगे चलते हुए बात इनके बारे में होती रहती है. ठीक है. बट ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एग्जाम में दिख जाते हैं. फाइन. एंड देख लिया ना आप लोगों ने. नाउ देखो, ब्राह्मण्स में शतपथ ब्राह्मण, मतलब इसको ऐतरेय एंड गोपथ, ये जरा कर लेना यार, अच्छे हैं. बिकॉज ऐतरेय ब्राह्मण थ्रोज लाइट ऑन द डिक्लाइन ऑफ द स्टेटस ऑफ विमेन, कि लड़कियों को बोलना शुरू कर दिया ऐतरेय ब्राह्मणा के अंदर में कि द डॉटर इज द सोर्स ऑफ सॉरो, दुख का स्रोत यही है. ऐतरेय ब्राह्मण. ऑल राइट. In Aitreya Brahmin, we also see the conflict between Brahmanas and Kshatriyas. दोनों में झगड़ा भी हो रहा है. Kshatriyas were saying कि we deserve first rank. उन्होंने बोला हमें चाहिए फर्स्ट रैंक, तुम कैसे हो गए? Brahmanas said no no no, फर्स्ट रैंक तो हमारा सोसाइटी में. All right. So क्लैश भी दिखता है. So that's why Aitreya Brahmin काम का हो जाता है. Shatapatha Brahmin shows the expansion of the Aryans from the northwestern to eastern parts of India, कि वेस्टर्न यूपी बिहार होते हुए गंडक तक कैसे फैल गए. समझ रहे हैं? That's why शतपथ ब्राह्मण इज इंपॉर्टेंट. वो स्टोरी इसी में दिखती है. गोपथ इज विद रिगार्ड टू द नॉन आर्यन बिलीफ्स. गोपथ काम का रहता है. राइट. तो ये कुछ मेरी तरफ से हिंट्स हैं आप लोगों के लिए. आप अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, बाकी कोई बात नहीं. All right. Okay. Done, guys. Done. ब्रह्मनाज लिख लिया आप लोगों ने. राइट अबाउट आरण्यकाज. राइट अबाउट आरण्यकाज. और थोड़ा सा हाथ तेज चलाएं. These books are called as forest books. These are called as forest books. Okay, forest books. These books deal with mysticism. These books, please focus here. Mysticism, रहस्य. These books deal with mysticism and sacrifices. And sacrifices. Okay. These are the bridge between way of deeds and way of knowledge. आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्म मार्ग, एंड दिस इज ज्ञान मार्ग. वे ऑफ डीड्स, वे ऑफ नॉलेज. उन दोनों में एक बैलेंस बिठाते हैं. वे ऑफ डीड्स एंड वे ऑफ नॉलेज. ओके. डन. अरे होते हैं ना 3-4 मार्ग होते हैं ना, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग. किस लिए होते हैं? दुनिया से मुक्त होना है. ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सब झूठ है. राइट. तो सब झूठ है तो फिर कैसे मालूम चलेगा सब झूठ है? तो अलग अलग रास्ते हैं मालूम करने के, टेस्ट करने के इस चीज को. ऑल राइट. सो सम एडवोकेट फॉर द कर्म मार्ग, सम एडवोकेट फॉर द ज्ञान मार्ग, सम एडवोकेट फॉर द भक्ति मार्ग. तो सिंपल यही है अभी. ओके. बाकी तो पिटारा पूरा खुलता है फिलोसफी में, विच इज द पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कि जब दर्शन पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऑप्शनल के लिए नहीं, जीएस के लिए. राइट. सो देयर आई ओपन अप द थिंग्स कि अब यहां पर देखो आप ये सारे मार्क कैसे आते हैं. और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है प्रीलिम्स में इसके ऊपर में. एक बार रामानुजा से क्वेश्चन पूछा उसने एक बार. आफ्टर दिस उपनिषदास,
Upanishads. Upanishads. These are the philosophical books or books on philosophy. These are the books on philosophy. These are the books on philosophy. Upanishads. Okay. Books on philosophy. Meaning of the word Upanishad is sit near or approaching near. The meaning of the word Upanishad is sit near or approaching near. समीप बैठना या समीप आना. अप्रोचिंग नियर. किसके समीप? गुरु के, टीचर के. ऑल राइट. सिट नियर और अप्रोचिंग नियर टू द गुरु, टू द टीचर. राइट. डन गाइज? गुड, ग्रेट. Upanishads deal with certain questions. Upanishads deal with certain questions. Number one, certain questions. Number one, how to attain salvation. मोक्ष कैसे मिले? How to attain salvation. दो तीन लिख लेते हैं यहाँ के लिए, ठीक रहेगा अपने लिए. ठीक है. How to attain salvation. पहला क्वेश्चन हो गया. Next question is what is Atma? What is soul? What is Atma? AC is working. It is working. बंद हो गया. किसी को पता है टेम्परेचर कितना है इसका? हाँ बताओ यार. तुम्हारे पास तो मोबाइल सारा काम कर लेते. क्रांतिकारी लोग हो तुम. किसके पास है मोबाइल? किसी के पास. अब कुछ नहीं करेंगे, सर ने पूछ लिया तो. देख लो यार, कुछ गर्मी से लग रही है. ओके, लिखिए. सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज सोल. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिवर्सल सोल. व्हाट इज यूनिवर्सल सोल. इन ब्रैकेट यू कैन राइट ब्रह्म. यूनिवर्सल सोल मतलब ब्रह्म. ब्रह्म कौन है? बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, अपने लिए इतना बहुत है. सैल्वेशन, सोल एंड यूनिवर्सल सोल. राइट. डन गाइज. आफ्टर दिस epics. Ramayana and Mahabharata, two are very important epics. Two epics, Ramayana and Mahabharata. Okay, Ramayana and Mahabharata, two important epics. Ramayana was written by Valmiki. Ramayana was written by Valmiki. Valmiki in Sanskrit. Valmiki in Sanskrit. Valmiki in Sanskrit. Mahabharata was written by Veda Vyas. Mahabharata was written by Veda Vyas in Sanskrit. In Sanskrit. Mahabharata. Okay. The old name of Mahabharata is Jay Samhita. कई सारे नाम थे इसके महाभारत के. जय संहिता. जय संहिता. Okay, was the old name of Mahabharata. Right. Initially, you know, in Mahabharata, 8,000 slokas, only 8,000 were there. Then 24,000 slokas. Then 1 lakh श्लोक. आज की डेट में 1 लाख श्लोक है महाभारत में. And this is the single largest poem
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है महाभारत का। सिंगल, इससे बड़ी पोयम है नहीं दुनिया में, सिंगल पोयम है पूरी है। ओके, और पर्वाज है, पर्व है महाभारत में। भगवत गीता भी है ना, भगवत गीता इज द पार्ट ऑफ भीष्म पर्व। भगवत गीता इज द पार्ट ऑफ भीष्म पर्व। ये लिख लो आप बस, भगवत गीता इज द पार्ट ऑफ भीष्म पर्व, राइट। खूब बात होती है ना भगवत गीता की, सिलेबस में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। और जो क्वेश्चन है चौरी चौरा वाला, पता कहां से उसका, करंट अफेयर्स का भी सोर्स है उसका। मोदी जी ने बहुत तारीफ किया था मालवीय जी का चौरी चौरा के बारे में। इट्स बीन 1.5 ईयर, करीब 1.5-2 साल से खूब बात हो रहा है। सो मोदी जी वाज थ्रोइंग द लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मालवीय जी। सो हाउ मालवीय जी डिफेंडेड दोज पीपल इन चौरी चौरा, ऑल राइट। तो बोल दिए, यूपीएससी को बढ़िया लग गया। आओ एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, all right, so that was from the current affairs as well। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो जो मोदी जी बोले सब तुमको करना ही है क्योंकि मोदी जी बहुत बोलते हैं, काफी कुछ बोल देते हैं वो, सब कुछ करना आपके बस की बात नहीं है, समझ गए। तो जो अपने काम का है उतना कर लिया, बाकी सब लाइक अमृत महोत्सव स्टार्टेड। अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव वाज अ वेरी फाइन इनिशिएटिव। इन अमृत महोत्सव अलग अलग एरियाज के जो फॉरगेटन हीरोज थे उनको स्टैम्प टिकट्स निकाले गए, स्टोरीज निकाली गई। देयर इज अ वेबसाइट, पूरी वेबसाइट है अमृत महोत्सव के ऊपर में जो हीरोज हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई तो क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी आस्क्ड नो क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछा उसने। समझ गए ना, तो मर्जी है उनकी, पूछ लिया नहीं तो नहीं पूछा, समझ गए ना इस बात को। दैट्स व्हाई से प्रिपेयर योर कोर सिलेबस, कोर सिलेबस तैयार रखो बढ़िया से अपना, फाइन। दैट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ स्टाइल, राइट। डन गाइज, दिस इज इट अबाउट द लिटरेचर। नोट में लिखो, नोट में। आप लोग पुराण भी तो सुनते हो, पुराण, पुराणाज आर द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर और नॉट? द आंसर इज नो, प्लीज ऐड, यही लिखवाना है। पुराणाज आर, पुराण जो होते हैं ये वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है। पुराणाज आर नॉट द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। पुराण वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है। पुराणाज आर नॉट द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। नोट में, बॉक्स में खत्म कर दो इसे।